Yes, good afternoon children. Today we discuss the doubts of the continuity, that is exercise 5.1. There is only one doubt posed by a child, Khushi Shukla. This is the question number 22. So in question number 22, 5.1 exercise. Read the problem. Discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent functions. Once again read it. Discuss the continuity of the cosine, कोसाइन है कि कोसिकेंट है? cosine, हाँ फिर cosecant, हाँ. secant and cotangent functions. Discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent function. There are four functions. First part is cosine function. Cosine x, that is may be called cos x. You want to discuss the continuity of cos x. My dear children, you remember the value of cos x for all x belongs to real number. The value of cos x will be lies between -1 to +1. It is never not defined. So whenever you draw the graph of cos, it is a continuous function. Cos 0 1 होता है जी, ये हाइट 1 ले ली मैंने. देन cos पाई बाई 2 0 होता है जी. cos पाई, can you tell me cos pi plus 0, that is third quadrant, minus cos 0, that is -1. Similarly here, this is the graph of cosine function. It never discontinuous. ये 0 पर है, that is 0 1, that is pi by 2 0, pi -1 and so on. So this graph is never discontinuous. That is, for all x belongs to R, fx equal to cos x is continuous function. No need to prove. Any proof is not required. It is always defined. Cosine function is never not defined. It lies between -1 to +1. You want to draw its graph only, graph draw कर दे. और यदि कभी कोई कहता है सिमिलरली बेटे साइन के लिए भी यही होगा. मैक्सिमम +1 मूव करेगा, मिनिमम -1 एंड वाइस. ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ये कभी ब्रेक नहीं होगा. Second part is Cosecant function. Cosecant function. Cosecant x, that is cosec x, जिसका एब्रीवेशन हम यूज करते हैं cosec x. My dear children, sin x is bounded between -1 to +1. At which angle the sin x becomes 0? If sin x equal to 0, then you remember x equal to n pi. In such type of situation, cosec x becomes not defined. Sin x is 0, that is cosec x is not defined. So कब cosec x not defined होगा? When x equal to n pi. So where n is an integer. So my dear children, it is always continuous since sin x is continuous, except x equal to n pi. Why? Since sin x is 0, since sin x equal to 0, which implies x equal to n pi for all n belongs to integer. So fx equal to cosec x is continuous for all x belongs to r minus n pi, where what is n is integer. मीन्स सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट n पाई, दैट इज एक्सेप्ट
x इक्वल टू n पाई, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। n पाई पर नहीं होगा क्योंकि कोसेक n पाई नॉट डिफाइन होगा। सिमिलरली थर्ड वन इज, थर्ड क्या है? secant function. देन थर्ड पार्ट fx इक्वल टू secant x, that is sec x. Once again it is the reciprocal of cos x. Earlier in first part you have cos x is always continuous, but sec x is not continuous everywhere. Since if cos x is 0, then what happen? If cos x equal to 0, then you remember x equal to 2n plus 1 into pi by 2, where every n belongs to integer. So at the point where the cos x is 0, sec x becomes not defined. So fx equal to sec x is continuous. Since cos is continuous everywhere, continuous for all x belongs to R except x equal to 2n plus 1 into pi by 2. Why? Since at this angle the sec x becomes not defined, और वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है. नो नीड एनी प्रूफ डियर. फर्स्ट यू राइट लाइक दिस. देन फोर्थ वन cotangent function. Fourth one is fx equal to cotangent function, cotangent x, that is cot x, जिसका एब्रीवेशन हम यूज करते हैं. अब आपको मालूम है सर tan x एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 छोड़ के, क्योंकि tan पाई बाई 2 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है. बट कैन यू टेल मी व्हेन tan x इज 0 देन cot x इज बिकम्स नॉट डिफाइंड. tan x इज 0 देन x इक्वल टू n पाई. So cot x is not defined when, कब, where x equal to n pi. Remember n belongs to n integer. So except this n pi the function is continuous. So you say sir fx equal to cot x is continuous for all x belongs to R except x equal to n pi, where n belongs to z. Same reason, since cot n pi is not defined. Understand? This is the way by which. So you got it? This is the question number 22. I think there is no problem for any child of my class. They are brilliant. Either या तो तुमने सब सॉल्व कर लिया या कुछ भी नहीं. माय डियर फ्रेंड, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डाउट पोस्ट करने होंगे. क्लास में तो मैं आपके पीछे पढ़ के आपकी कॉपी देख के डाउट देख लेता था, पूछ लेता था, आपसे बुलवा लेता था. अभी मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा इनको जरूर चेक करें. मेरी विनम्र प्रार्थना है हमारे सभी सम्मानीय पेरेंट्स से, इन बच्चों को चेक करें. ये डाउट मेरे पास कम आ रहे हैं, या तो इनको सब आता है या कुछ भी नहीं. प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, प्लीज़ कोऑपरेट करें. डाउट आप पोस्ट ज़रूर करें, अकॉर्डिंगली मैं आपको डिस्कस करूं. थैंक यू. 22 हो गया. अभी सर ओवर हो गई एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चन शायद आपने कर लिए हैं. नाउ I am asking which function is always continuous? Trigonometric function for any real number? Only two. They are sin x and cos x. Since they are never not defined. So sin x और cos x का ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता. So they are always continuous. My dear children, now we discuss the differentiability. To discuss the differentiability,
This is the differentiability if y equal to fx is a given function. ये आपको यदि फंक्शन गिवन है, then it is called differentiable at x equal to a only when then fx is differentiable at x equal to a only when right derivative of the function at x equal to a equal to left derivative of the function at x equal to a defined हो और equal हो, then only we say the function is differentiable. What do you mean of right derivative? Right derivative आप याद करिए, limit h tends to 0 f of a plus h minus f a upon h. This is called right derivative. And what is the left derivative? F of a minus h minus f of a upon minus h. It is equal to k for any defined number. This is right derivative and this is left derivative. दोनों. Whenever we want to discuss the differentiability of any function, you want to show or you want to check whether the function is differentiable or not, you have to find right derivative and left derivative separately, individually, and you compare them. They are defined and equal, then only you say the function is differentiable. You remember, this is the first principle only. In earlier class, that is in class 11th, you have already discussed about the differentiability. Now, this is the basic concept. There are some questions. Whenever you want to check the differentiability, then you have this differentiability law. Now you see the chain rule. सेकेंड चेन रूल ये हो गया. लिखना है जी आपको कॉपी पर, विद डेट आपको नोट्स बनाने हैं. आपकी कॉपी ही हमारा प्रूफ है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाया. ये रिपीट नहीं होगा. अब पॉसिबल नहीं है कि आपकी जब क्लास होगी रियल क्लास, इफ पॉसिबल देन ये रिपीट होगा. हो सकता है आप क्वेश्चन पूछें तो मैं बताऊं, बट अब टाइम नहीं होगा. चेन रूल, व्हाट इज द चेन रूल? Suppose y is the function of t and t is the function of x. हमको dy by dx निकालना है. Then dy by dx निकालने के लिए हम y डिपेंड करता है t पर, तो y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? t के रिस्पेक्ट में. से इट इज f डैश t एंड t का हम डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर देंगे क्योंकि t डिपेंड करता है x पर, g डैश x. नाउ somebody से फाइंड dy by dx. तो आप बोलोगे सर y का डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता. सो y का किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है जी? t के रिस्पेक्ट में. dy by dt मल्टीप्लाइड बाई t का किसके रिस्पेक्ट में होगा जी? x के रिस्पेक्ट में. dy by dx इससे निकलेगा सर. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. y is the function of t, so y differentiate with respect to t. Whenever t is the function of x, so t differentiate with respect to x. Or their multiplication is the differentiation of y with respect to x only. So it is f dash t multiplied by z dash x. This is the result. This is called chain rule. This is very useful in online classes, RO, regional office online classes. I'm always give the stress whenever I have taken any class, please do the chain rule thoroughly.
you go through the any reference book and make the practice. Once again I am requesting dear children, एक और शिकायत है, एक बार में मेरी क्लास के 14 और 15 बच्चे ही ऑनलाइन आते हैं, मेरे पास हर क्लास का रिकॉर्ड है। आप याद रखना, आपके इंटरनल असेसमेंट में मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, दे आर नॉट इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ योर स्कूल। कुछ तो आरोप क्लास में भी नहीं आते हैं, और वही उनने फैशन यहां बना रखा है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पास डिवाइस नहीं होती है, यदि नहीं होती है तो आप वो जरूर बताएं, जिससे आप बाद में देख लेते हैं, जिससे मैं इंश्योर हूं कि आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं तो सर ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये हम लोगों का फेलियर है। ऐसे ही अभी तो फंक्शन है ये टी का, टी फंक्शन है एक्स का। सपोज करो केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट था, ये लिखें, फिर केस सेकेंड बताऊं आपको, प्लीज राइट डाउन इट। चेन रूल का फर्स्ट केस, लिखा आप सभी को ऑनलाइन क्लास में आके वर्क करना है। पता नहीं क्यों बच्चे आप वर्क नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बीच में मैं आपकी कॉपियां कलेक्ट करा लूं, आपके घर से मैं कॉपियां कलेक्ट करा लूंगा। भाई जी आपने कितना वर्क किया मैं चेक करके फिर वापस करा दूंगा। मैं आपकी कॉपियां कलेक्ट कराऊंगा, क्लास वर्क कॉपी। व्हाट इज योर एक्चुअल स्टेटस, ये मुझे जानना है। यस, सी दी केस सेकेंड। सपोज y is the function of t and t is the function of u and u is the function of x। थर्ड आ गया जी। अब मैं y का किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं जी? t के रिस्पेक्ट में। अब t का डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? u के रिस्पेक्ट में। सो इट बिकम्स z डैश u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। तो सर u का किसके रिस्पेक्ट में आएगा? इसका आएगा x के रिस्पेक्ट में। इट इज h डैश x। डैश स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, वो वैल्यू जो आई। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो साहब dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप कहोगे सर y इज द फंक्शन ऑफ t, तो सर y का तो t के रिस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लाइड बाई t किसका फंक्शन है जी? u का है। देन u का का फंक्शन है सर x का है। फिर इनकी आप वैल्यू रख देंगे, ये होगा f डैश t, ये होगा z डैश u एंड ये क्या होगा सर? h डैश x। ऐसे ये थ्री फंक्शन होगा, ऐसे चेन है सर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। y डिपेंड्स ऑन t, t डिपेंड्स ऑन u, u डिपेंड्स ऑन h। क्लियर सर? दैट इज y डिपेंड्स ऑन t, t डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x। ये चेन है, और भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम 3 टाइम ही आपको मिलेगा। दिस इज द चेन रूल। राइट डाउन द सेकंड केस इन योर नोटबुक। लिखिए इसको। मैं आपकी कॉपियां कलेक्ट कराने जा रहा हूं। आपका मैंने अभी टेस्ट लिया गूगल फॉर्म में, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने आपके आंसर चेक किए, कुछ बच्चों को तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बट देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ ने तो सबमिट ही नहीं किया। देयर आर 15 children of your class, they have submitted. Remaining children, once again I am requesting, especially commerce section, आप एक्टिव नहीं हैं, प्लीज ध्यान रखना। इंटरनल असेसमेंट में ये सारी स्कोरिंग आपकी काउंट होगी। हो गया?
नाउ वी हैव द एक्सरसाइज कार्ड. कौन सा एक्सरसाइज है? 5.2. Read the question number 1. First you read the language. Differentiate the functions with respect to x. First, sin x square plus 5. Y equal to sin x square plus 5. Y equal to sin x square plus 5. You want to differentiate it with respect to x. माय डियर चिल्ड्रन, साइन एक्स होता, सारे फॉर्मूले की लिस्ट तो आपको बनानी है जी. यदि ये होता डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता सर? अब प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स तो नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंगल. तो हम इसका कैसे करेंगे सर? हम लोग क्या बोलेंगे? y इक्वल टू साइन टी, वेयर t इक्वल टू क्या बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस 5. मैंने ये एजम्पशन ले लिया. क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑब्स्टेकल है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5. यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह डायरेक्ट एक्स होता तो मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखता. सो मैंने t को एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिया, सपोज कर लिया, वेयर so it becomes y equal to sin t, means y depends on t and t depends on x. अब मैं y का किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं डिफरेंशिएशन? विथ रिस्पेक्ट टू t. sin t का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos t. एंड t का कॉमा लगाया है, एंड t का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? x के रिस्पेक्ट में. x स्क्वायर का 2x हुआ और 5 का हुआ 0. बट आप बोलोगे सर वी वांट टू फाइंड dy बाई डी एक्स सर, सो यू से बाई चेन रूल. आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे. बिगिनिंग में आप ऐसे लिखें. सो इट इज नथिंग. आप बोलोगे सर y इज द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x, सो इट बिकम्स dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स. Then dy by dt, what is dy by dt? cos t. And what is the dt by dx? 2x. 2x को पहले लिख दीजिए, 2x cos t. What was t actually? x square plus 5. This is the way by which you find the derivative of given function. जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसको y एज्यूम करोगे. फिर आपको ये देखना है कि सर हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किसका मालूम है. उस फंक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि t से किसको रिप्लेस करेंगे. डू इट, करिए. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल. ये फर्स्ट हुआ, ऐसे ही सेकंड ट्राई करें, थर्ड ट्राई करें, हो गया. Yes, you understand this problem? अमरदीप सिंह राठौर, राणा, हर्ष, कमल, ये सारे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई पता नहीं सर मुझे. यू हैव टू राइट इन योर चैट बॉक्स. आप लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं सर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. हो गया.
Please do it. आई थिंक सेकेंड आपने किया होगा। चेन रूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। चेन रूल की प्रैक्टिस यदि आपने कर ली तो आप ये मान के चलिए कैलकुलस के फुल मार्क्स आपको आने वाले हैं। y इक्वल टू cos of sin x, cos sin x, yes. Once again you recall, if you have differentiation of cos theta with respect to theta, then it is minus sin theta. This is the basic formula involved here. यदि मेरे पास cos theta होता तो with respect to theta ये क्या हो जाता, माइनस साइन थीटा। cos x होता तो with respect to x जो होता वो माइनस साइन x. So let y equal to cos t where t equal to क्या एज्यूम किया सर आपने, sin x. अब y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है. सो यू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज cos t का माइनस साइन t. एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का क्या आएगा जी, cos x आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप. अब आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. y का डायरेक्ट हम x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t. t का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. सो dy बाई डी टी इज माइनस साइन t, इट इज cos x. माइनस cos x पहले लिख दीजिए, माइनस cos x साइन t. दैट इज, अब ऐसा मत करना t के साथ cos x का एंगल के साथ इंटू कर दिया, वो एंगल है. साइन t इज द होल क्वांटिटी, t इंडिपेंडेंट नहीं है. cos x माइनस पहले लिख दिया, माइनस cos x. एंड व्हाट इज t, t इज sin x, सो इट इज माइनस cos x into sin of sin x. This is the way by which you solve the problem. ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं. आई वॉन्ट टू डिस्कस सम मोर. फर्स्ट यू राइट दिस, चेक किया, जिनने किया है वो चेक करें. यदि सही किया है तो मेरी साइड से आप वेरी गुड लिख लें कॉपी पर, और यदि गड़बड़ हुई है तो नो प्रॉब्लम, फिर से आप ट्राई करें. वंस अगेन थर्ड को ट्राई करें. प्लीज डू इट. यस, थर्ड ट्राई करना है. मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये फील किया है, व्हाट आई नोटिस ड्यूरिंग द आरओ क्लास, रीजनल ऑफिस की जो ऑनलाइन क्लास है वो, ड्यूरिंग माई ओन स्कूल क्लास, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, द चिल्ड्रन आर misuse their freedom. They are inside their study room, so they are only observing, they are only viewing the video YouTube as the movie, as the video. This is not fruitful for you, dear children. Please take pen and copy and imagine you are inside the classroom. You feel like this and do the problem. If you make such type of practice, then only you are able to solve the problem, otherwise not. So please जाग जाइए. My old student Master Ratnesh Dubey yesterday asked me, sir, how are the online classes going?
So what I replied him, dear Ratnesh, this is the one-way traffic. Only I am written on the board, but what are they doing? I don't know. Whenever I am asking, they leave the class. So please try to move with two way. मीन्स मेरे साइड से भी हो और आपके साइड से भी क्वेश्चंस हो, आप सॉल्व करें, टाइम को यूटिलाइज करें. आपको प्रैक्टिस के अलावा कोई और शॉर्टकट सक्सेस नहीं दिला सकती, आप ये रियलाइज कर लें सर. अभी तक तो क्लास में आप होते थे तो हम पीछे पड़ जाते थे. अब आपसे अपेक्षा है कि आप मुझे अपने सामने माने और मेरी बातों को रिकॉल करें, अपने पेरेंट्स को करके दिखाएं. मेरा रिप्लेसमेंट आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी कॉपी देखेंगे कि बच्चा कर रहा है कि नहीं. अपेक्षा है पेरेंट्स से भी कि ध्यान दें. सर थर्ड प्रॉब्लम देखिए, y इक्वल टू साइन. ax plus b. Once again the same problem. If you have differentiation of sin theta with respect to theta, it is nothing, it is cos theta. So what is the problem? Problem is this, ax plus b. ax plus b को क्या सपोज करेंगे? t. So differentiation of y with respect to x. अब मैंने डायरेक्ट किया सर, चेन रूल अप्लाई करिए. t को आपने सपोज किया तो इसका पहले साइन टी का क्या होगा जी? कॉस टी. व्हाट इज टी? ax प्लस बी. ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसको t एज्यूम किया, साइन टी का कॉस टी. व्हाट इज टी? ax प्लस बी इंटू टी का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी. ये डायरेक्ट एप्लीकेशन. आप ऐसा इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप ऐसा लिखना शुरू कर दें. इसको टी लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, 2 बार मैंने एक्सप्लोर कर दिया आपको. आप चाहें तो वैसा डिटेल लिख लें, ax प्लस बी इक्वल टू टी. इसको साइन टी का हुआ कॉस टी. व्हाट इज टी? टी मी से x प्लस बी. अब इन टू में आएगा. यदि केवल x होता तो कुछ नहीं लिखना था, x की जगह ये ax प्लस बी था तो मल्टीप्लाइंग बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ t. व्हाट इज t? ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी? ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हुआ a, x का 1, b का 0, b कांस्टेंट है. अब इसमें मत इंटू कर देना, ये एंगल है. a को पहले लिखिएगा, दैट इज a इंटू cos ax प्लस b. So what we conclude? We conclude that whenever you have the differentiation of sin x, then you say cos x. What you have the differentiation of sin ax plus b, then you say sir cos ax plus b. जैसे cos x आया था, multiplying by the differentiation of this quantity, that is x का कोफिशिएंट कॉमन आया, a कॉमन आ गया. How you use this directly? ये फॉर्मूला है एक्चुअली. हाउ यू कैन यूज, जैसे मैं आपसे कभी पूछ लूं कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 7x प्लस 5 क्या होगा, आप बोलेंगे सर cos 7x प्लस 5 तो आना ही है. अब इसका डिफरेंशिएशन होगा जिसको आपने t लिया, तो 7x प्लस 5 का 7 बाहर आ जाएगा. क्लियर जी? ये एप्लीकेशन है. अब आपका काम ये है, जैसे ये आपने एक क्वेश्चन किया थर्ड, बाकी क्वेश्चन ट्राई करने एज वेल एक लिस्ट बनानी है फॉर्मूले की. वो कैसे, उनको प्रूव भी करना है बार बार. आप कैसे वो लिस्ट बनाएंगे? अपग्रेडेड लिस्ट बनाएंगे. डिफरेंशिएशन की एक अपग्रेडेड लिस्ट बनाएंगे. आप याद करिए, इफ यू हैव सीन द इंटीग्रेशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन RO regional office online classes, I have discussed the integration and the substitution method. When I was discussed the integration, I have written this formula directly. जिनने डेरिवेटिव में ये कर लेना है उनको इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाना है. तो किस फॉर्म में आप लिस्ट बनाएंगे वो मैं बताना चाहता हूं. थर्ड क्वेश्चन के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं
जो नहीं आते हैं विदाउट हेजिटेशन आपको बताना है। स्पेशली जैसे मॉड फंक्शन का एक प्रॉब्लम है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम है। ट्राई टू सॉल्व देम। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व, इफ यू हैव डाउट, प्लीज राइट डाउन दी डाउट। व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट तो लिखिए, मैं सॉल्व करूंगा, आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, आपको गूगल मीट में आके डिस्कस कर लूंगा, बट प्लीज राइट डाउन दी डाउट। मुझे लगे तो कि आप इन्वॉल्व हो स्टडी में। मुझे तो केवल शिवानी शुक्ला ने एक डाउट लिखा, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं समझ रहा हूं, मैं क्लास में होता तो मैं जाके कॉपी देखता, फिर खड़ा होता। अभी शर्म आ रही है, मत शर्माओ बच्चों प्लीज। ये हो गया थर्ड। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आपको फॉर्मूले किस फॉर्म में प्रूफ करने हैं और चेन रूल की कैसे यूटिलिटी करनी है, कैसे एक लिस्ट लिखनी है, वो लिस्ट आप अपनी कॉपी पर लिखें और इसको सारे फॉर्मूले को ड्राइव करें। तो इतने सारे क्वेश्चन तो आपके चेन रूल के एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सबको प्रूफ करना है जैसे ये वाला किया। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है सर, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर n। अब याद करो सर, आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n तो है, ये तो आपने पढ़ रखा है जी। बट यहां x ना होके क्या है, ax प्लस बी है, तो आप किसको t एज्यूम करोगे, ax प्लस बी को t एज्यूम करोगे। सो व्हाट हैपन, n इंटू टी टू दी पावर, व्हाट इज t, ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। अब जब ax प्लस बी का करोगे मतलब t का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a कॉमन आ जाएगा। ये आपको ड्राइव करना है, इसको आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि आया कैसे, ये a कहां से आ गया जी, क्योंकि जब आपने इसको t सपोज किया तो चेन रूल लगाने से हुआ। आप अपनी कॉपी पर इसको ड्राइव भी करोगे। क्या मैं ड्राइव करके बताऊं, जैसे मैंने साइन ax प्लस बी का थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया वैसे ही करना है। ax प्लस बी को t लेना है। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस बी। अब e टू दी पावर x था तो उसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा क्या होता था, e टू दी पावर x इटसेल्फ होता था। अभी ax प्लस बी को t लोगे तो e टू दी पावर t का तो e टू दी पावर t हुआ। अब जब t का किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो a कॉमन आ गया। ये आपको ड्राइव करने हैं, इनको आप ड्राइव करोगे, प्रूव करके लिखोगे जिससे आपकी मेमोरी में आ जाएं, आपको लर्न हो जाएं। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी, तो डियर अभी बताया मैंने क्या आएगा, साइन t का हो गया cos t, दैट इज ax प्लस बी। जब t का विथ रिस्पेक्ट टू किया तो a कॉमन। देन फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस बी, cos का माइनस में होता है, सो माइनस साइन ax प्लस बी एंड x का कोफिशिएंट। ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, ये लिस्ट मैं आपकी कॉपी पर देखूंगा। अगला टेस्ट इसी का होगा। ये सारे फॉर्मूले में गूगल मीट पर आऊंगा और ओरल आपसे बुलवाऊंगा। यदि आपने नहीं बोले, सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, सारे बच्चों के नाम विथ, मैं अटेंडेंस डेली लगा रहा हूं, अपनी कॉपी मेंटेन किया हूं, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन शेयर करके कितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। 10ax प्लस बी, इट इज 10 थीटा का 10x का सेक स्क्वायर x, सो इट बिकम्स सेक स्क्वायर ax प्लस बी, x का कोफिशिएंट a। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cot ax प्लस बी, cot ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा cos थीटा का, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, दैट इज इट बिकम्स माइनस a इंटू कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी। राइट डाउन दीज फॉर्मूलाज, इनको ड्राइव भी करिए, लिखें इनको, फिर रिमेनिंग लिखता हूं। सो प्लीज राइट डाउन दीज फॉर्मूलाज एंड ड्राइव देम। ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में करने हैं आपको, ये प्रूव करने हैं।
जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन किया, लिख लिए। मैं आपकी कॉपी पर देखूंगा सर, और फोन करके पेरेंट्स से फीडबैक लेने वाला हूं, आप क्या कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ये मेरी कंप्लेंट है आपसे, आप घर में कर नहीं रहे हैं प्रॉब्लम। सेवेंथ, कुछ ही बच्चे, वो बार बार वही बच्चे बस आते हैं, बाकी बच्चों को तो मतलब ही नहीं है, ऐसा मत करिए। जैसे सुदीप मिश्रा, पता ही नहीं वो कब आता है कब चला जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक ए एक्स प्लस बी, 8 डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी। कोसेक एक्स यदि होता तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। यू रिमेंबर सी से स्टार्ट होते हैं तो माइनस आता है, सो माइनस ए इंटू कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी, a constant, then sec x plus b, sec ax plus b into tan ax plus b, a constant, then sec हो गया, कोसेक हो गया, ये सारे ड्राइव करने हैं आपको। नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी वेयर बेस इज ई इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट ए, दैट इज ए अपॉन एक्स प्लस बी। ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे, इनको आप ड्राइव करिएगा, इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। 10th भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस, यहां पर के ए एक्स प्लस बी, ई की जगह यदि के आ गया तो माय डियर फ्रेंड ये आएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो आएगा कांस्टेंट एक का कोफिशिएंट आएगा इनटू लॉग के वे सी। ये आपके फॉर्मूलेज हैं जिनको ड्राइव आप करोगे। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग 5.2 के क्वेश्चंस विथ सम प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस बुक, यू विल ट्राई, घर में ट्राई करिए। आपको नहीं मालूम कितनी प्रॉब्लम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कितनी मुश्किल से ये आप तक पहुंचाता हूं। प्लीज कोऑपरेट करें और प्रैक्टिस करें, तब तो ये हमारी और आपकी मेहनत सफल है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, स्टे होम।